the weaknesses of a human being when he is driven by emotion. And at the very least, it will open a few windows. We are not making this show, it is not a public service show. It is purely for entertainment purposes only. एक समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब उसके सामने दो राहें होते हैं और मेरे सामने भी दो राहें थे। सर फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस, आपका नया शो है, फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आपके रिटर्न का। डू यू थिंक दैट समवेयर डाउन द लाइन यू बीइंग अ होस्ट यू हैव अ वेरी बिग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सबके सामने दर्शाने वाले हैं? See, I don't know why everybody takes everything so seriously. My humble advice to to a lot of people nowadays is that don't take everything in life so seriously. It's an entertainment program, and whether or not I do the show, that is immaterial. But being who I am, I have a moral responsibility on my shoulders 24/7. But in answer to your question, it is a show that showcases the weaknesses of a human being when he is driven by emotion. And at the very least, it will open a few windows. We are not making this show, it is not a public service show. It is purely for entertainment purposes only. Having said that, it will create a certain realization amongst people as to what happens when you lose control over yourself. And I'm actually very proud to be associated with the show, and of course I am aware of the moral responsibilities and the social responsibilities that I carry on my shoulders. Okay, last thing here that आपने कहा कि स्क्रिप्ट में they have written beautifully and obviously सारी स्टोरी सामने लेकर आएंगे। जी। So tell me just one thing कि क्या have you ever taken back a story back home because obviously काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो कहते हैं ना रियल लाइफ से रिलेटेड होंगी जो सोसाइटी में हम देखते हैं हमारे आसपास होती है। Have you taken back a story back home? Has it affected your mind ever? Have you watched news channels? Yes. Have you read the papers? Yes. Does that answer your question? It does, but then So, every yeah. person is different. Yeah, no. I am, since you have, I try and keep myself away from this. I don't like to voice my opinion, but I'm an actor. An actor has heightened sensitivities, and I have extra heightened sensitivities because, like I said in the press conference, I try and share only happiness and not share my grief. So at all times, I mean, by God's grace, I don't have too much grief in my life. Most of the grief is external, not coming from my immediate family, but coming from the people that I see every day, the state of affairs that I see every day, and it does affect me because I'm a very, very sensitive person. But what I see and what my logical mind tells me is that these problems are of a very great nature, and it cannot be solved by one person alone. It needs a movement. You can refer to my last tweet that pretty much will explain my mind when it comes to things like this. Yes, I do get affected, and I get more affected by the fact that I can do nothing about it. सर एक और भी लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि यार बड़ा टैलेंटेड एक्टर है, तो आई प्रिफर दैट टू सुपरस्टार, क्योंकि उसमें क्या है फिर थोड़ा सीखने का स्कोप होता है, थोड़ा आगे बढ़ने का स्कोप होता है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ आजकल OTTs पे और जो फिल्में लोग कर रहे हैं, आई फील आई हैव येट अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी मेरा अभ्यास चल रहा है, आई एम स्टिल लर्निंग थ्रू वेरियस मेथड्स, तो आई प्रिफर द एक्टर टैग टू स्टार और सुपरस्टार टैग, बट थैंक यू सो मच। एंड आई हैड नेवर गॉन फ्रॉम टेलीविजन, मैं टेलीविजन छोड़कर कहीं नहीं गया था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो काम मैं 20 साल से करता आ रहा हूँ, कोई तो होगा जो मुझे कुछ अलग काम ला कर देगा, क्योंकि वो जैसे कि हम जुर्म और जज्बात की बात कर रहे हैं, तो मेरे जज्बात इस लेवल तक पहुंच गए थे। I hope कि हमने we have qualified for that. एक समय
हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब उसके सामने दो राहें होते हैं, और मेरे सामने भी दो राहें थे कि मैं उस पथ पे चलता रहूं जहां बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, या मैं फिर एक जो मोड़ आया उस मोड़ पर चलूं जो जिस पे कांटे हैं, थोड़ा स्लो हो जाएगा वो, कांटे भी चुभेंगे पैर में, पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन हर पक्षी जो उड़ना चाहता है उसे अपने पंख खोलने ही पड़ते हैं। तो मैंने सोचा चलो एक बार जंगलों में से निकल के देखें, अगर खो गए तो कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकलेगा। बट आई एम हैप्पी दैट मैं इतने साल बाद, आई थिंक 6 साल बाद टेलीविज़न कर रहा हूँ, और एक ऐसे शो के साथ जो जब सुभाष जी और प्रियंका जी मेरे पास आए शो का कॉन्सेप्ट लेकर, तो आई रियली लाइक्ड इट कि क्राइम शोज तो बहुत बने हैं, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इस शो में कि एक, जैसे कि मैंने पहले कहा है, एक आम इंसान से जब अपराध होता है तो वो साइकी हम एज ए सोसाइटी बहुत जल्दी कंडेम कर लेते हैं लोगों को कि यार ये तो क्रिमिनल, लेकिन क्यों, कैसे वो बना, कैसे वो वहाँ तक पहुँचा, उसकी मनोस्थिति क्या थी जब उसने ये अपराध किया या उसके हाथों हुआ। तो ये एक सोसाइटी के मन को उजागर करने वाला भी शो है कि व्हाट अ कॉमन मैन गोज थ्रू बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। देयर इज डोमेस्टिक अनबन होती है। शख्स, हर व्यक्ति को ये होता होगा दिन में 1-2 बार जब हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द कि शहर में क्या हो रहा है, तो कोफ्त होता है ना मेरे भाई, अंदर से कोफ्त होता है, लेकिन क्या करें। देखिए रोहित जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिग्नल का ड्यूरेशन भी बढ़ गया और पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ गया है, पेशेंस लेवल और आप मानते हैं कि हाई करना होगा बड़े शो से भाई की पब्लिक को। एक मिनट, क्या आपकी प्रॉब्लम सिग्नल के साथ है या पेट्रोल के साथ? कि सिग्नल, अच्छा मैं समझा हूँ कि सिग्नल जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ज़्यादा पेट्रोल जाएगा, तो गाड़ी तो बंद कर सकते हैं ना। अब गाड़ी बंद होगा तो एसी बंद हो जाएगी, और गर्मी में आपने एसी बंद कर दी तो पसीना आएगा, पसीना आ गया तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तक जाते जाते बदबू आएगी। सर सब गड़बड़ है, सर सब गड़बड़ है। रोनी साहब, मेरा सवाल आपसे सर जी, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट यू एज एन एंकर और एज एन एक्टर, वेरी यू हैव टच्ड द राइट पॉइंट। न सिर्फ एंकर के लिए बल्कि पूरा जो कंटेंट है, पूरा जो एपिसोड का कंटेंट है, जो मेरे वैसे तो कहने को 30 साल एज एन एक्टर हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 30-35 इयर्स होने हैं। मैं पहले असिस्टेंट था, फिर एडिटर बना, फिर एक्टर बना, और मुझे सिखाया गया था कि हर चीज़, तब तो खैर ये सब टीवी वगैरह था नहीं, सिर्फ फिल्में बनती थी, तो मुझे सिखाया गया था अपने अर्ली इयर्स में कि फिल्में 2 टेबल पे बनती हैं, पहले राइटिंग टेबल पे बनती हैं, फिर एडिटिंग टेबल पे बनती है। तो आई थिंक द राइटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, अ गुड राइटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एनी कंटेंट, चाहे वो चलचित्र हो या टेलीविज़न हो या OTT प्लेटफॉर्म हो। बिना राइटिंग के, बिना कंटेंट के, जब तक आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कोई किसी एक्टर में इतना हुनर नहीं होता कि एक ख़राब कंटेंट को जस्टिफाई कर सके। सो यू आर वेरी राइट, राइटिंग इज द मेन स्टे एंड द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस दैट एवरी एक्टर नीड्स। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.